I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seems scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? No, he is not a sadist like one or two of the others. Frank, I beg your pardon. Taplo, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. Frank, indeed, but I think you went on to say that some other masters. Taplo, well, of course, they are. Sir, I won't mention names, but you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway. You are and you are science. You must know what sadism is, Frank. After a pause, good Lord, what are our schools coming to? Taplo. Anyway, the croc isn't a sadist. That's what I'm saying. He would not be so frightening if he were, because If at he were, least it, वेयर G नहीं पढ़ते उसको, वर पढ़ते हैं, WERE, were, वर. were. हम्म. He would not be so frightening if he were, because at least it would not show he had some feelings. But he has not. He has all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who does not like being liked, Frank. And I don't know any boy who does not use that for his own purposes. Tableau. Well, it's natural, sir, but not with the croc. Frank, Mr. Crocker Harris, Tableau. Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything I do rather like him, In I can't spite, help it. In in spite. spite, in spite of everything I do rather like him, I can't help it. And sometimes I think he sees it and that sees to shrivel him up even more. Frank, I'm sure you are exaggerating, exaggerating, Exaggerating. exaggerating, Taplo. No, sir, I am not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he would mean he he had meant it as funny. So I laughed out of ordinary common Lightness. and politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. Frank laughs. रहने दो. Taplo in a ठीक है, रहने दीजिए. ऊपर कहा था, look what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here. ये हो गया था ना. G. यहाँ से था, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You will seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? Admit का मतलब एतराफ कर. टेप्लो के कहने के बाद फ्रैंक कहते हैं कि आई मस्ट एडमिट, मुझे जरूर एतराफ कर लेना चाहिए या मुझे एतराफ है. आई इनवी, इनवी का मतलब हसद करना, जलन करना, कि मुझे हसद है. हिम उनसे, उनसे का मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस. मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से हमें हसद है. किस बुनियाद पे हसद है? कि ही सीम्स टू हैव ऑन योर बॉयज इन द फॉर्म. उस असर की वजह से है जो असर तुम जैसे लड़कों पर क्लास के अंदर होता है. तो मुझे ये एतराफ है कि मुझे क्रोकर से या क्रोकर हैरिस से मुझे हसद है उस असर के बुनियाद पे जो असर बच्चों के ऊपर
या उनका जो असर बच्चों के ऊपर क्लास के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को देख करके बच्चे पूरे डिसिप्लिन में आ जाते हैं और दूसरे टीचर से इतना मुतासिर नहीं होते जितना कि क्रॉकर हैरिस से होते हैं। तो ये जो असर बच्चों पर पड़ता है, इस असर को देख करके मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से हसद है। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम। स्केयर टू डेथ का मतलब मौत, जैसे मौत से कोई डरता हो वैसे ही डर, यानी बहुत ज्यादा खौफ। तो स्केयर टू डेथ ऑफ हिम का मतलब कि लगता है ऐसा है कि आप लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसे ही जैसे लोग मौत से डरते हैं। तो यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, आप लोग उनसे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। व्हाट डज ही डू, वो आपको करते क्या है? बीट यू ऑल और समथिंग, क्या आप लोगों को वो मार लगाते हैं, मारते हैं, या इसके अलावा कुछ और करते हैं जिसकी बुनियाद पे आप लोग डरते हो? तो यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। तो आप उनसे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, वो आपसे क्या, आपके साथ, आप लोगों के साथ क्या करते हैं? या वो आपको मारते हैं, यानी आप तमाम तलबा को मारते हैं, या इसके अलावा कुछ और करते हैं? टेप्लो फ्रैंक की इस गुफ्तगू के बाद जवाब देता है, गुड लॉर्ड, अल्लाह की पनाह, नो ही इज नॉट सैडिस्ट। सैडिस्ट एक वर्ड है। सैडिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके खुशी महसूस करे। तो जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए या तकलीफ उसको पहुंचे और किसी वजह से और उसको खुशी हो, तो उसको बोलते हैं सैडिस्ट। तो कहते हैं ही इज नॉट अ सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है। तो सैडिस्ट का मतलब क्या होगा? वो इंसान जो किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके या दूसरे इंसान के तकलीफ होने पे खुशी महसूस करे। तो ही इज नॉट अ साइडिस्ट, वो साइडिस्ट नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, जैसे और दूसरे असातिज़ा हैं, दूसरे असातिज़ा में एक या दो उस्ताद ऐसे हैं जो साइडिस्ट हैं या उनको खुशी होती है। तो कहते उसको टैपलो कहता है कि ऐसे ये क्रोकर हैरिस नहीं है। सो ही इज नॉट अ साइडिस्ट, वो साइडिस्ट नहीं है जैसे कि दूसरे टीचरों में या दूसरे असातिज़ा में एक या दो टीचर हैं। जब टैपलो ऐसा कहता है तो फ्रैंक उस पर थोड़ा सा उनको हैरत होती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो फ्रैंक कहता है, आई बेग योर पार्डन, माजरत है, मैं माजरत चाहूंगा या मुझे माफ कीजिए। टैपलो बोलता है, Pardon means, sir. पार्डन का मतलब माजरत करना, माफी चाहना। अच्छा, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ या आपकी माफी चाहता हूँ। टैपलो, a sadist sir is someone who gets pleasure out of given pain। अब टैपलो कहता है पार्डन, जब कहा कि यो पार्डन, ये कभी कभी पार्डन का लफ्ज आप उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब मसलन कोई दर्स दे रहा हो और दर्स के दौरान आपको बातें समझ में ना आ रही हो, उस दौरान में उस्ताद की बातों को कैसे रोका जाए, या जो स्पीकर स्पीच दे रहा है उसकी बातों को कैसे रोका जाए, तो उस जगह पे आप पार्डन लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही आप पार्डन बोलेंगे तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि शायद ये हमारी बातें इनको समझ में नहीं आ रही है, इनको कुछ खास तवज्जो या कुछ और मजीद वजाहत की जरूरत है। तो फ्रैंक उसी okay, जगह sir. पर, आई बेग योर पार्डन, मैं आपका पार्डन या माजरत है। टैपलो कहते हैं, क्योंकि आगे कह चुका था वो सैडिस्ट नहीं है, तो उसी बात को फिर टैपलो वाजे करता है। सैडिस्ट सर, सैडिस्ट का मतलब ये है, सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लीजर आउट ऑफ गिवन पेन। तकलीफ दे करके जो खुशी महसूस करता है, उस वैसे इंसान को सैडिस्ट बोलते हैं। फ्रैंक फिर कहते हैं, इंडीड, हकीकत में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। लेकिन ठीक है, सैडिस्ट का मतलब तो मैं समझ गया, लेकिन तुम अपने गुफ्तगू में तुमने ये भी कहा कि मिस्टर क्रोकर हैरिस तो सैडिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ असातिज़ा में एक या दो ऐसे उस्ताद हैं जो सैडिस्ट हैं। इस पे मुझे हैरत हो रही है। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से, लेकिन मुझे ख्याल है कि तुम ये कह गए कि कुछ और दूसरे मास्टर, सब 3 मरतबा डबल डॉट लगा दिया, इसका मतलब है समथिंग इज हिडन, कुछ बातें छुपी हुई हैं।
तो कुछ दूसरे मास्टर या दूसरे असातिज़ा क्या हैं, सैडिस्ट हैं। तो आपकी बातों से ये तो समझ में आया कि मिस्टर क्रोकर हैरिस ये सैडिस्ट नहीं है, लेकिन उसी गुफ्तगू में आपने इस बात को भी शामिल कर लिया कि कुछ दीगर असातिज़ा सैडिस्ट हैं। अब टैप्लो उनका जवाब देता है, वेल ऑफ कोर्स, जी सर, यकीनन ऐसा है। दे आर सर, हाँ सर, सैडिस्ट तो हैं सर। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं उनका नाम का तस्करा तो नहीं करूंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन आप वैसे ही जानते जैसा कि मैं जानता हूँ, जितना मैं आप जानता हूँ उनके बारे में आप भी जानते हैं। बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानते हैं उनके बारे में। और ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग्स वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, और साथ कहते हैं और यकीनन मैं जानता हूं कि बहुत ऐसे असातिज़ा हैं इनको जो ये ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं कि हम जो ये तालिब इल्म है, ये हम तालिब इल्म किसी चीज को नहीं समझते हैं, हमें हमारे पास कुछ समझ ही नहीं है। सो आई नो, मैं जानता हूँ कि मोस्ट मास्टर थिंग, बहुत सारे असातिज़ा ये ख्याल करते हैं कि वी बॉयज, हम तलबा जो हैं, डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, हम अंडरस्टैंड नथिंग, हम कुछ समझते नहीं है। कहते हैं बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन साथ साथ सारी बातें कह गए, उसके बाद माजरत के अंदाज में टैप्लो कहता है, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप अलग हैं, आप उसमें शामिल नहीं है। यू आर यंग वेल कंपेरेटिवली, निस्बतन आप बेहतर हैं, आप जब भी नौजवान हैं। एनीवे, एंड यू आर अ साइंस, यानी टीचर ऑफ साइंस, और बहरहाल और आप एक साइंस के उस्ताद हैं। तो यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, तो सैडिज्म क्या होता है इसके बारे में तो आप यकीनन जानते होंगे। फ्रैंक, आफ्टर अ पॉज, थोड़ा टैप्लो ने जब ऐसी गुफ्तगू की है तो थोड़ा फ्रैंक को हैरत होती है और थोड़ा थोड़ी देर रुकता है, और रुकने के बाद कहता है, गुड लॉर्ड, अल्लाह की पनाह, व्हाट आर आवर स्कूल्स गोइंग कमिंग टू, हमारा स्कूल किधर आ रहा है या किधर जा रहा है, नहीं हमारे स्कूल के हालात क्या हो रहे हैं। टैप्लो कहता है, एनीवे, बहरहाल, द क्रोक इजंट सैडिस्ट, से टैप्लो कहता है, बहरहाल सर, हैरिस क्रोकर जो क्रोकर हैरिस जो हमारे उस्ताद हैं, कि बहरहाल सैडिस्ट नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हमारा कहने का मतलब यही है कि वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट क्यों नहीं है, तो कहते हैं उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। He wouldn't be so frightening if he were, कहते अगर वो सैडिस्ट होते, यानी दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके कुछ वो एहसास करते, खुशी महसूस करते, इसका मतलब है कि उनके अंदर इस तरह की फीलिंग होती। तो कहते हैं ही वुडंट बी सो फ्राइटेनिंग इफ ही वर, इतने खौफनाक नहीं होते अगर वो सैडिस्ट होते, क्योंकि एट लीस्ट इट वुड शो, इससे ये तो पता चलता कि ही हैड सम फीलिंग्स, उनके अंदर कुछ एहसासात हैं, लेकिन वो किसी चीज को वो फील नहीं करते, बट ही हैजंट, लेकिन उनके अंदर किसी तरह की फ्राइटेनिंग मीन्स खौफनाक। जी, फ्राइटेनिंग। जी फ्राइटेनिंग मतलब खौफनाक। यस। एट लीस्ट ही वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कम अज कम उससे ये तो पता चलता सैडिस्ट होने से कि उसके अंदर उनके अंदर कुछ फीलिंग्स है, बट ही हैजंट, लेकिन उनके अंदर जो मैं महसूस करता हूँ कि इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। ही हैज ऑल श्रीवेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, अब एक तस्वीर दे रहा है नट से, कि वो अपने अंदर के जो उनका अंदर है, जो एहसास वाली जो हिस्सा होता है, वो एहसास वाला हिस्सा उनका उतना ही खुश्क है जितना कि एक अखरोट का अंदर का हिस्सा होता है। इनसाइड लाइक अ नट, नट का मतलब अखरोट वगैरह कर लें, तो जैसे अखरोट के अंदर का हिस्सा खुश्क होता है, उसी तरीके से बिल्कुल उनके अंदर का हिस्सा बिल्कुल खुश्क है, कोई इस तरह की फीलिंग नहीं करते हो। He seems to hate people to like him, और ऐसा लगता है श्रिवेल्ड कि अप। श्रिवेल्ड अप का क्या मतलब होगा? मतलब ड्राइड अप, बिल्कुल खुश्क सूखा हुआ। द पर्सन हु हैज नो फीलिंग, जो अपने अंदर कोई एहसास फीलिंग ना करता हो, एहसास ना करता हो, उसको ताबीर किया है श्री श्री श्रीवेल्ड अप से। तो श्रीवेल्ड अप का मतलब डिक्शनरी में देखेंगे तो मिलेगा आपको ड्राइड, सूखा हुआ।
ठीक है। जी सर। द पर्सन हु हैज नो फीलिंग, ऐसा इंसान जो अपने अंदर किसी तरह के एहसास न रखता हो, उसको श्रीवेल्ड कह सकते हैं। तो उसी को कहा श्रीवेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, नट के तरीके से बिल्कुल उनका अंदर का एहसास का मादा सूखा हुआ है। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और जो लोग उनको लाइक करते हैं, वो लाइक करने वाले पीपल से क्या करते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो हेट नफरत। करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। इट इज फनी दैट, अजीबोगरीब बात है। एंड आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक, और मैं किसी ऐसे दूसरे उस्ताद को नहीं जानता हूँ जो कोई उनको लाइक करे और उस लाइक को लाइक करने को पसंद, वो लाइक ना करे। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ किसी दूसरे उस्ताद को हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक, तो उनको कोई लाइक करे, इस चीज को वो लाइक ना करते हो, ऐसा कोई दूसरा उस्ताद नहीं है। समझ में आया? जी सर। लेकिन कहा, लेकिन मिस्टर क्रोकर बिल्कुल इससे अलग अलग है। तो आई डोंट नो एनी अदर मास्टर, मैं किसी ऐसे दूसरे उस्ताद को नहीं जानता हूँ हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक, जिसको महबूब होना, जिसको चाहा जाना पसंद ना हो। अब फ्रैंक कहते हैं आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। अब फ्रैंक कहते हैं ठीक है, तुमने मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में ऐसी बातें कही हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी तालिब इल्म को नहीं जानता हूँ जो अपने मकासद के लिए वो टेक्निक जो तुमने मिस्टर क्रेके या दूसरे असातिज़ा के लिए तुमने बताया है, वो टेक्निक तलबा ना इस्तेमाल करते हूँ। सो आई डोंट नो एनी बॉय, मैं किसी ऐसे तालिब इल्म को नहीं जानता हूँ वो डज नॉट यूज दैट, जो उसका इस्तेमाल ना करता हो फॉर हिज ओन पर्पसेस, अपने मकसद के लिए। कहता है, टैपलो जवाब देता है, वेल इट इज नेचुरल सर, ये तो फितरी बात है सर, बट विद द क्रोक, बट नॉट विद द क्रोक। कहा, ये ऊपर की चीजें बताई ही वो फितरी बात है, लेकिन ये फितरी चीजें जो है ये क्रोक के साथ नहीं है। तो क्रोक सिर्फ तनहा बोल दिया क्रोक। तो फ्रैंक फ्रैंक ने जवाब दिया कि मिस्टर क्रोकर, क्रोकर हारिस को तो सिर्फ क्रोक मत कहो, बल्कि पूरा नाम लो, मिस्टर क्रोकर हारिस। तो तालिब इल्म जो कह दिया कि क्रोक के साथ ये मामला नहीं है, तो फ्रैंक ने अगला जुमला ऐड कर दिया कि सिर्फ अपने जुमले में क्रोक मत बोलिए, शॉर्ट लफ्ज के साथ मत बोलो, बल्कि उनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम अदब के साथ लो, फ्रैंक मिस्टर क्रोकर हारिस। क्लियर है? यस सर। फिर टेप्लो कहता है, जी हाँ जी सर, मिस्टर क्रोकर हारिस। जो उन्होंने, फ्रैंक ने ये जो इंडिकेट कर दिया, जो हेल्प दिया उनको कि सिर्फ आप क्रोक मत बोलो बल्कि मिस्टर क्रोकर हारिस बोलो, उसी अल्फाज को टैपलो फिर रिपीट करता है, जी सर, मिस्टर क्रोकर हारिस। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। कहते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद जो मिस्टर क्रोकर हारिस के बारे में टैपलो ने कहा, आई डू रादर लाइक हिम, मैं उनको कुछ ज्यादा ही चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता हूँ। जहाँ ये रादर का लफ्ज आता है, उसका मतलब होगा कुछ और ज्यादा। सो आई डू रादर लाइक हिम, मैं उन्हें कुछ ज्यादा ही चाहता हूँ, लाइक करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसको रोक भी नहीं सकता। आई कांट हेल्प इट, यानी उसके लाइकिंग से मैं अपने आप को रोक भी नहीं कर सकता, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं सोचता हूँ ही सीज इट, कि वो भी इस चीज को देखते हैं। आप लाइक को देखेंगे क्या, तो आप ये सीज का माना फील्स कर लें, समटाइम्स ही सीज इट, उसको ये महसूस भी करते हैं। एंड दैट सीम्स टू श्रीवेल अप हिम इवन मोर, लेकिन देखने के बाद भी या उसको महसूस करने के बाद भी वो इस बात का इजहार नहीं करते कि हम उनको लाइक कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ही और खुश हो चुके हैं, या अंदर की जो फीलिंग है वो फीलिंग का मादा उनका और ज्यादा खत्म होता है। दैट सीम टू श्रीवेल हिम अप इवन मोर, तो इससे तो ऐसा लगता है कि वो देखने के बावजूद भी उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, उनका जो फीलिंग का एहसास है और वो ज्यादा खुश हो चुका है। फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंक उसके बाद कहता है, टेप्लो, अब तो तुम मुबालगा राई कर रहे हो, आई एम श्योर यू आर एग्जेगरेटिंग,
अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कुछ मुबालगा आराई से काम ले रहे हो। एग्जीगरेटिंग मतलब वो चीज जो हकीकत में ना हो और उससे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। उर्दू में उसी को बोलते हैं मुबालगा आराई करना। एग्जीगरेटिंग का मतलब मुबालगे से काम लेना। तो फ्रैंक टैपलो की गुफ्तगू सुन करके कहते हैं कि आई एम श्योर, मुझे यकीन हो चुका है कि यू आर एग्जीगरेटिंग, आप मुबालगे से काम ले रहे हैं। समझ में आया? जी सर। और आगे पढ़ा था आपने? जी थोड़ा सा पढ़ा। ओके, अब कहता है कि नहीं सर, मैं एग्जीगरेटिंग से काम नहीं ले रहा हूँ। नो सर, आई एम नॉट एग्जीगरेटिंग, मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ। अब मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ क्यों? कहते हैं कि बात दरअसल ऐसी है, इन द फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉब। इन द फॉर्म द अदर डे, फॉर्म का मतलब क्लास, इन क्लास द अदर डे, किसी दूसरे दिन क्लास में, ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉब, एक अपनी एक रवायती लतीफा सुनाया। ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉब्स, उन्होंने अपने एक रवायती लतीफा सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड। और हालत क्या हुई कि कोई भी इंसान जब लतीफा कहता है और लतीफा सुनाने वाला का मकसद होता है कि इसके बाद लोग हंसेंगे, लेकिन कहता ऑफ कोर्स नोबडी लाफ, लेकिन किसी को हंसी नहीं आई, कोई हंसा नहीं। हंसा क्यों नहीं? बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि उनकी कोई बात ही समझ में नहीं आई, कोई समझा ही नहीं। एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड, और मैं भी उन्हीं में से था, यानी मैं भी मिस्टर क्रोकर हैरिस की बात को समझा नहीं, लेकिन इतना तो जानता था मैं कि ये लतीफा सुना रहे हैं। तो कहते माई सेल्फ इंक्लूडेड, मेरी भी मैं भी उसी में शामिल था। स्टिल आई न्यू ही वुड मींट इट एज अ फनी, लेकिन फिर भी मुझे तो पता था कि ये जो बातें कह रहे हैं वो एज अ लतीफा, लतीफा के तौर पे कह रहे हैं। सो आई लाफ, इसलिए मैं हंस गया। यानी समझ में नहीं आया कि इस लतीफे का मकसद क्या है, लेकिन इतना जानता था कि ये लतीफा ही सुना रहे हैं, तो जब उन्होंने सुना लिया तो मैं हंस दिया। सो आई लाफ, इसलिए मैं हंस गया। Out of the ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him, he for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. अब कहता है out of ordinary common politeness, बहुत ही कॉमन पोलाइटनेस से बाहर होकर के, नहीं गुस्सा होकर के, एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम, और उनके बारे में कुछ दुखी होकर के, फॉर हैविंग मेड अ पुअर जॉब, उन्होंने इस तरह का जॉब क्यों बयान किया, इस तरह का लतीफा क्यों बयान किया। उनके इस खराब लतीफे के बयान करने के बुनियाद पे मुझे गुस्सा भी आया, मुझे दुख भी हुआ, लेकिन आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जॉब वाज, लेकिन मुझे याद नहीं रह सका कि वो जॉब कौन सा था। लेकिन फिर एक, अब ये कहता है आगे एप्लो, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन फ्रैंक से कहते हैं लेकिन आप मान लीजिए कि अगर मैं ही वो लतीफा अगर आपसे मैं बयान कर दूं, तो ना यू लाफ सर, तो क्या आप उस लतीफे को सुन के हंसेंगे सर? तो फ्रैंक लतीफे को सुन के तो नहीं हंसा, लेकिन इसके अंदाजे गुफ्तगू में फ्रैंक हंसते हैं, कहता फ्रैंक लाफ, फ्रैंक हंस जाते हैं। आया समझ में? जी सर। ओके, सो इसे रिपीट कर लें, बकिया जो रह गया उससे कल इंशाल्लाह दे। कॉमन पोलाइटनेस मीन्स गुस्से में। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस का मतलब है आम नरमी से आउट बाहर। ऑफ, अच्छा पोलाइटनेस मीन्स नरमी। हाँ, पोलाइटनेस मतलब नरमी। आउट ऑफ का, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन जी, पोलाइटनेस एंड आम फीलिंग नरमी अ से बिट बाहर सॉरी यानी फॉर गुस्से में। हिम। जी, और ओके कुछ सर। उनसे दुख भी हुआ था। फॉर हैविंग यस मेड अ सर। पुअर जॉब, जो उन्हें इस तरह का एक बेकार का यस जो यस। जॉब बनाया, बयान किया, उस जॉब पे उन्हें कुछ दुख भी हुआ, यस कुछ गुस्सा भी आया। ओके सर, थैंक यू। जी, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। पहले से शुरू हो गया।
हाँ